With PHP, you can connect to and manipulate database. So MySQL is the most popular database system used with PHP. So what is MySQL? MySQL is a database system used on the web. MySQL is a database system that runs on a server. MySQL is ideal for both small and large applications, and MySQL is very fast, reliable, and easy to use. MySQL use standard SQL, and MySQL complies on a number of platforms. MySQL is free to download and use. MySQL is developed, distributed, and supported by Oracle Corporation. MySQL is named after co-founder Monty Widener's daughter My. तो उन्होंने अपनी SQL के आगे जो My ऐड किया ये उनकी डॉटर का नेम है बेसिकली. So the data in a MySQL database are stored in tables. A table is a collection of related data and it consists of columns and rows. So databases are useful for storing information categorically. A company may have a database with the following tables like employees, products, customer, and orders. So PHP plus MySQL database system. PHP combined with MySQL and a cross platform, you can develop in Windows and serve on a Unix platform. Database query. A query is a question or a request. We can query a database for specific information and have a record set returned. So look at the following query using standard SQL like select last name from employees. तो ये क्वेरी क्या काम करेगी, एम्प्लॉय टेबल्स में से जितने भी लास्ट नेम होंगे उन सबको फैच करके लेकर आएगी. So this will returns all the last name from the employees tables in the database. Facts about MySQL database. MySQL is the de facto standard database system for websites with huge volumes of both data and end users like Facebook, Twitter, Wikipedia. Another great thing about MySQL is that it can be scaled down to support embedded database applications. बात करते हैं MySQL Connect. PHP connect to MySQL, so PHP 5 and later can work with MySQL database using MySQLi extension. The I here is stand for improved, and second is PDO, which is called PHP Data Object. Earlier versions of PHP used the MySQL extension. However, this extension was deprecated in 2012. 2012 के बाद से MySQL यूज नहीं हो रहा है, अब यूज होता है MySQLi. Here I is based on improved. So should I use MySQLi or PDO? If you need a short answer, it would be whatever you like. Both MySQLi and PDO have their advantages. PDO will work on 12 different database systems, whereas MySQLi will only work with MySQL databases. So, if you have to switch your project to use another database, PDO makes the process easy. You only have to change the connection string and a few query. With MySQLi, you will need to rewrite the entire code, queries included. Both are object oriented, but MySQLi also offers a procedural API. Both support prepared statement. Prepared statements protect from SQL injection and are very important for web application security. So हमारे कंटेंट में है MySQL. हम MySQL पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमें कल को फ्यूचर में किसी डिफरेंट टेक्नोलॉजी में जाना हो तो हम लोग API की हेल्प से जा सकते हैं. जैसे इस बैच में निशांत एंड शिवम हैं,
तो हमने रिएक्ट के अंदर एपीआई की हेल्प से डेटा फैच करना सीखा है, किस तरह से एपीआई का यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ओपन अ कनेक्शन टू MySQL. So before we can access data in the MySQL database, we need to be able to connect to the server. So सर्वर से कनेक्ट होने के लिए आपने क्या करना होगा, आप यहाँ लिखेंगे इस तरह से सर्वर नेम, सर्वर का नेम जो हमारा होता है वो है लोकल होस्ट, यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होता है रूट, पासवर्ड हमारे कंप्यूटर में होता है ब्लैंक, कुछ नहीं होता हमारा, ठीक है। सो आप यहाँ पर करेंगे क्रिएट कनेक्शन के लिए कनेक्शन वेरिएबल न्यू MySQLi सर्वर नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तीनों को यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद कनेक्शन को चेक करने के लिए आप यहाँ लिखेंगे डॉलर कनेक्शन, उसमें से आप निकालेंगे कनेक्शन एरर, अगर फेल होता है तो एरर रिटर्न आ जाए, एल्स आपको रिटर्न आ जाए कनेक्टेड सक्सेसफुली। नोट ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जांपल अबव, डॉलर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर was broken until PHP 5.2.9 and 5.3.0. If you need to ensure compatibility with PHP versions prior to 5.2.9 and 3.0, use the following code instead of this. तो आप वहाँ पे लिखेंगे MySQLi underscore connect underscore error, ना कि connect underscore error, ठीक है। तब आपका काम वहाँ पर हो जाएगा उस केस में। चलिए बात करेंगे डेटाबेस बनाने की कि डेटाबेस किस तरह से क्रिएट होगा। तो यहाँ से रिमूव करेंगे और क्रिएट डेटाबेस में आते हैं। अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टेबल, सो यू विल नीड स्पेशल क्रिएट प्रिविलेज टू क्रिएट और टू डिलीट अ MySQL database. So create a MySQL database using MySQLi, ठीक है। तो create database statement is used to create database in MySQL. So यहाँ पर अभी आप देखें connected successfully, और यहाँ पर क्या लिखा है, error creating database cannot create MyDB database is already exist. तो चलिए डेटाबेस को ओपन कर लेंगे, यहाँ से क्लिक here, क्लिक ऑन एडमिन और यहाँ आ जाते हैं। जूम आउट करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ नोटिस करें MyDB के नाम से हमारे पास एक डेटाबेस ऑलरेडी यहाँ पर है इस तरह से। तो मुझे कोई और डिफरेंट डेटाबेस नेम चूज करना होगा, या फिर मैं इस डेटाबेस को एक्सपोर्ट करके रख दूँ। मैंने यहाँ से क्लिक किया, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, इसके बाद हम यहाँ से माई एडमिन में आके डेटाबेसेस पर क्लिक करेंगे और MyDB जो हमारा डेटाबेस है मैं उसको यहाँ से ड्रॉप कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद जो ये हमारी फाइल है, इस फाइल को अगर मैं रीलोड करूँगा तो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, बट इसको क्रिएट करने से पहले मैं VS कोड अपना ओपन करूँगा यहाँ, बैच टाइम है 3:32:05, यहाँ से अप्रैल मंथ, MySQL डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। सो यहाँ पर आप देखें हमने यहाँ पर पीछे कुछ डिफाइन किया हुआ है। टू क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट डेटाबेस इन MySQL। तो सबसे पहले हमें अपना कनेक्शन डिफाइन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने लोकल होस्ट हमारा सर्वर का नेम हो गया, यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्लैंक होता है। ये हमें कैसे पता चले, तो आपको यहाँ पर आना होगा PHP My Admin, उसके बाद यूज़र अकाउंट, और यहाँ पर आके आप देख सकते हैं यूज़र का नेम क्या होता है, रूट, होस्ट लोकल होस्ट, पासवर्ड नो। तो ये आपको यहाँ से पता चलेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये कोड अगर हम लोग रन कर देते हैं तो इसकी हेल्प से क्या होगा, आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाई भी दे चलने से पहले। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टेक्स्ट एरिया
टेक्स्ट एरिया को अपन यहाँ से क्लोज कर लेंगे। रेस्ट जितना भी हमारा ये कोड लिखा हुआ है इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। इसमें ये कोड एग्जीक्यूट ना हो जाए, एम्परसेंट LT एम्परसेंट GT। तो हम लोग इस कोड को यहाँ पर प्रीव्यू कर पाएंगे इस तरह से। और ये देखिए, तो या तो आप यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट या फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 127.0.0.1। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लोकल होस्ट को रिप्लेस कर देता हूँ 127.0.0.1 तब भी ये एक्सेसिबल है, काम करता है आपके लिए। ठीक है, यूजर नेम रूट रहेगा, पासवर्ड ब्लैंक रहेगा। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से यूज करेंगे डॉलर कनेक्शन वेरिएबल विच इज यूजर डिफाइंड, बट मीनिंगफुल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। न्यू MySQLi आपने यहाँ से रन करना है कमांड। इन तीनों वेरिएबल को आप यहाँ पर पास कर देंगे, सर्वर, यूजर, पासवर्ड। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे लिखना ही है ऊपर, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लोकल होस्ट, रूट और ब्लैंक। बट अगर डिफाइन कर लें वेरिएबल तो दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस। इसके बाद कनेक्शन को चेक करने के लिए आप यहाँ लिखेंगे डॉलर कनेक्शन कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। अगर मेरा कनेक्शन फेल होता है तो कनेक्शन फेल वहाँ पर रिटर्न आए और जो भी एरर हो वो डिस्प्ले हो जाए। अदरवाइज एको में रिटर्न आना चाहिए कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर मेरा कनेक्ट सक्सेसफुल हो चुका है तो मुझे क्वेरी यहाँ से रन करना है, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नेम है MyDB। इफ डॉलर कनेक्शन क्वेरी, और इसमें हमने अपने वेरिएबल को पास किया यहाँ पर SQL। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो आपको मैसेज रिटर्न आ जाए डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। अदरवाइज आपका मैसेज आ जाए एरर क्रिएटिंग डेटाबेस, और इसके बाद में हमने अपने कनेक्शन को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो हमारी फाइल डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, हम यहाँ पे जाके मार्क P3 M/3 ये डिफाइन करेंगे। So when you create a new database, you must only specify the first 3 arguments to the MySQL object: server name, username and password. Tip: if you have a specific port, add an empty string for the database name argument like this: new MySQLi localhost username password और port। यानी कि बात वही आ रही है, हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए इस कोड को हम लोग रन करके देखेंगे इसका आउटपुट क्या होगा हमारे लिए। एग्जाम्पल MySQLi ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो देखिए मैंने कोड यहाँ पर कॉल किया है, ब्राउजर में आते हैं तो देखिए आप यहाँ पर फाइल को रिलोड करके अभी फिलहाल यहाँ पर MyDB के नाम से कोई फाइल नहीं, आपको डेटाबेस नहीं मिलेगा। बट जैसे हम लोग यहाँ से पेज को रिलोड करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं रिटर्न आ रहा है कनेक्टेड सक्सेसफुली एंड डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। पेज को रिलोड करिए और ये देखिए MyDB के नाम से आपका एक फ्रेश डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुका है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं टेबल को बनाने का, तो यहाँ से डेटाबेस में अगर आप कोई टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं रिटर्न आ रहा है कनेक्टेड सक्सेसफुली एंड टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अ डेटाबेस टेबल हैज इट्स ओन यूनिक नेम एंड कंसिस्ट ऑफ कॉलम एंड रोज। सो
table statement is used to create a table in MySQL. So we will create a table my students with 5 columns: ID, first name, last name, email and registration date. तो अभी हम लोग अगर पेज को यहाँ पर MyDB को ओपन करेंगे तो आपको माई स्टूडेंट्स के नाम से टेबल मिलेगा और उसके अंदर ये 5 कॉलम्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका कोड क्या होगा, तो हम लोग यहाँ क्रिएट टेबल में आएंगे। ये टेबल बनाने के लिए एक कोड है आपका, तो हमने इसको किया यहाँ से कॉपी और डेटाबेस वाली फाइल से हम टेक्स्ट एरिया अपना करेंगे कॉपी यहाँ से। एंटायर मैसेज हम यहाँ से करेंगे कॉपी और इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। हमने यहाँ पे क्या डिफाइन इस तरह से। नंबर 4, चलिए तो हमने देखिए यहाँ पर एसक्यूएल में क्या भेजा और इस बार हमने क्या चेंजेस किया इसके अंदर। हमने यहाँ पर ऊपर एक और इस बार नया पैरामीटर सेट किया, डीबी नेम। तो डेटाबेस का नेम क्या हमारे पास, माई डीबी। तो इस बार आपको जब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो आपको डेटाबेस का नेम भी यहाँ पर पास करना होगा। इस बार आपकी क्वेरी होगी क्रिएट टेबल, टेबल का नेम है माई स्टूडेंट्स, आईडी इंटीजर नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। इसका मतलब क्या होगा कि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट जैसे जैसे उसके अंदर आप एंट्री डालेंगे तो हर एक पर्सन की आईडी ऑटोमेटिकली, जैसे पहला होगा तो 1 2 3 4 5 6 चेंज होती रहेगी। फर्स्ट नेम वेरिएबल कैरेक्टर, इसकी हेल्प से आप वहाँ पर अपना नेम वगैरह पास कर पाओगे, जिसकी लेंथ में अप टू 30 की हम लोगों ने डिफाइन किया इसमें। तो वो आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो फर्स्ट नेम, ईमेल, लास्ट नेम, ये तीनों क्या रहेंगे, वेरिएबल कैरेक्टर। रजिस्ट्रेशन डेट हमने एक कॉलम बनाया है जिसमें टाइम स्टैम्प हमने कैप्चर करना है और जो भी जिस टाइम पर वो रिकॉर्ड बनेगा बैकएंड में वहाँ पर उसका करंट टाइम स्टैम्प आ जाएगा। प्लस अगर कोई उसको एडमिन अपडेट करता है रिकॉर्ड को तो उसके बाद में करंट टाइम स्टैम्प अगेन अपडेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको चेक करेंगे, कनेक्शन क्वेरी एसक्यूएल जो हमारा टेबल को कंटेन कर रहा है स्टेटमेंट, अगर वैल्यू ट्रू है तो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज यहाँ पर उसमें कोई एरर होगा तो वो रिटर्न हो जाएगा। तो फिलहाल आप यहाँ पर अगर पेज को रिलोड करें देखो टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर आप नीचे देखें कनेक्टेड सक्सेसफुली, एरर क्रिएटिंग टेबल, टेबल माई स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो फिलहाल टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए इसमें एरर थ्रो हो रहा है। आपको इसकी हाइट बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर हम लोग बनाने जाएं, जैसे कि मैं यहाँ से माई डीबी में आता हूँ और मुझे टेबल को डंप करना है, ठीक है, तो मैंने ऐसे किया ड्रॉप और ओके किया हमने इसको। अब देखिए, अब अगर आप पेज को रिलोड करते हैं तो आपको रिटर्न आएगा कनेक्टेड सक्सेसफुली एंड टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, इस तरह से। ठीक है तो ये आपको टेबल क्रिएट करने में हेल्पफुल होगा कोड इस तरह। इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं कहानी। Notes on the table above. The data type
specifies what type of data the column can hold. After the data type, you can specify other optional attributes for each column. जैसे कि UL, LI और हम यहाँ लिख रहे हैं नॉट नल. नॉट नल का काम क्या है? Each row must contain a value for that column. Null values are not allowed. Next, default value. Set a default value that is added when no other value is passed. Unsigned. Used for number types limits the stored data to positive numbers and 0. Auto increment. MySQL automatically increases the value of the field by 1 each time a new record is added. Primary key. Used to uniquely identify the rows in a table. The column with primary key setting is often an ID number and is often used with auto increment. Each table should have a primary key column in this case. The ID column its value must be unique for each record in the table. Okay,
सो जब भी आप इसको बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्राइमरी की मेंशन रहे। तो हम लोग जैसे यहाँ पर आते हैं ब्राउज़र में, ठीक है, तो हमने यहाँ पर आईडी को क्या बोला है, ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की। तो बैकएंड में कुछ ही आपको इस तरह का दिखाई देगा, माई डी, ये टेबल है अपना, और जब आप स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक की दिखाई देगा इस तरह से, और क्या लिखा है इसमें, ऑटो इंक्रीमेंट। तो जैसे से इसके अंदर रिकॉर्ड जाते रहेंगे ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली न्यू लाइन, तो सॉरी न्यू नंबर असाइन करता जाएगा रिकॉर्ड को। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरा अटेंडेंस सिस्टम के नाम से यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 सबका आईडी जो है वो यूनिक है, और इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पर मेंशन है। चलिए हम आईडी में वापस आते हैं। होल्ड कीजिएगा एक मिनट। हेलो, चलिए हाँ जी ऑन कर दिया हमने। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन आ गया सारा, ठीक है। तो ये जो हम लोग टेबल ऊपर डिफाइन करें तो आप यहाँ पर देखेंगे नॉट नल। तो नॉट नल का मतलब क्या था, ईच रो मस्ट कंटेन अ वैल्यू फॉर दैट कॉलम, नल वैल्यू आर नॉट अलाउड। यानी कि अगर यूज़र किसी फील्ड को खाली छोड़ के सबमिट करता है तो वो सबमिट नहीं हो सकता, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दैट इज एडेड व्हेन नो अदर वैल्यू इज पास्ड। तो उस कंडीशन में डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ था, बट हमने इसमें डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं किया है, ठीक है। हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़ करा टाइम स्टैम्प के केस में। अनअसाइंड, ठीक है। अनसाइंड का मतलब क्या होता है, यूज्ड फॉर नंबर टाइप्स लिमिट्स द स्टोर डेटा टू पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। तो जीरो से लेके आपका आगे जो भी नंबर आप लेके जाना चाहते हैं डिफाइन कर सकते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट, जैसे जैसे रिकॉर्ड बनते जाए आपकी नई नई एंट्री क्रिएट होती जाए उसके अंदर। प्राइमरी की, ये इस टेबल को माई स्टूडेंट को जो यूनिक बनाएगा वो आईडी, क्योंकि आईडी हर एक रिकॉर्ड का अलग होगा, बिल्कुल एकदम डिफरेंट। जैसे कि पहला होगा तो 1, दूसरा होगा तो 2, नेक्स्ट होगा 3, इस तरह से। तो इस तरह से बेसिकली ये वाला पार्ट आपका वर्क करेगा। नेक्स्ट पर आते हैं, कुछ डेटा इंसर्ट करने की बात करते हैं। डेटा कैसे इंसर्ट होगा इसमें, तभी माई स्टूडेंट में कोई डेटा नहीं है, तो डेटा डालने के लिए यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे नंबर 5 इंसर्ट डेटा। तो यहाँ देखो लिखा है कनेक्टेड सक्सेसफुली एंड न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आप यहाँ रिफ्रेश अगर करेंगे तो देखेंगे डेटा पीछे बन चुका है, जैसे नितिन कुशाल, उसकी ईमेल आईडी। और अभी हमारा 4:23 हो रहे हैं कंप्यूटर में, जब मैंने ये एंट्री बनाई थी तो ये देखो डेटा अपना क्रिएट हो गया और आईडी वन जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है हमें। चलिए, तो after our database and table have been created, we can start adding data in them. So here are some syntax rules to follow. The SQL query must be quoted in PHP. String value inside the SQL query must be quoted. Numeric value must not be quoted, and the word null must not be quoted. अगर आप किसी को डेटा नहीं दे रहे तो उसको आप इन्वर्टेड कोड में नहीं डिफाइन करेंगे। तो the insert into statement is used to add new records to a MySQL table. तो आपको क्या लिखना होगा, insert into टेबल का नेम है my students, यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जो आपके फील्ड के नेम है। वैल्यूज़ में आप जैसे नेम है तो नेम के अगेंस्ट नेम, ठीक है, ईमेल के अगेंस्ट ईमेल, फ़ोन नंबर तो उसके अगेंस्ट फ़ोन नंबर, इस तरह से आप डेटा भेजते हैं यहाँ से। So if a column is auto incremented like the ID column, or timestamp with default update of current timestamp like the registration date column, it is no need to be specified in the SQL query. MySQL will automatically add the value. यानी कि अगर हम लोग फ्रंट एंड से कोई डेटा भेजेंगे तो हमें आईडी और रजिस्ट्रेशन डेट को नहीं भेजना, हमें सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल को ही डेटा देना है। तो हम यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे, the insert
पहले अपनी फाइल ओपन करिए। यस, तो क्लास बॉर्डर p3 इस तरह से। नेक्स्ट इसको हम डिफाइन कर देंगे डॉट मार्क p3my3। चलिए, तो टेबल को भी हाईलाइट करेंगे यहाँ पर। प्रीवियस फाइल से हम अपना कोड करेंगे कॉपी, टेक्स्ट एरिया टू टेक्स्ट एरिया, तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारी एक एंट्री ऑलरेडी बन चुकी है वहाँ। मैं कुछ नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा है इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल। ये नेम एज इट इज़ मैच करना चाहिए जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मिसमैच नहीं होना चाहिए। और आपको जैसे कोई न्यू एंट्री यहाँ पर अगर क्रिएट करनी है, तो जैसे हम अपनी क्लास से ले लेते हैं निशांत, और निशांत की एंट्री हम यहाँ बना देंगे इस तरह से। और निशांत का ईमेल आईडी ये हमने यहाँ से कॉपी किया, और निशांत का लास्ट नेम। और जब आप वेब ब्राउज़र में यहाँ पर रिलोड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। और जब आप ब्राउज़र में यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो आप यहाँ पर निशांत का ये एंट्री आप यहाँ देख पाओगे इस तरह से। बेसिकली क्या, तो फाइल कई बार हमारी वो उधर सेव हो गई, तो उस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर ये उसने मल्टीपल एंट्री क्रिएट की है, ठीक है। बट अगर हम लोग इस बार फिर से कोई नई एंट्री अगर बनाएंगे, तो ये ऐसा नहीं करेगा। तो क्या कर सकते हैं, एक तो इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको फिक्स कर दो। चलिए, तो मैंने जितनी बार फाइल में चेंजेस किया उतनी बार देखोगे आप यहाँ पर एंट्री बनी है निशांत की इस तरह से, ठीक है। तो आगे चल के हम लोग ये भी कंट्रोल कर सकते हैं, अगर निशांत की एंट्री ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो वो क्रिएट ना हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट आईडी। हमें लास्ट आईडी गेट करना है कि लास्ट आईडी किस तरह से गेट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ ये अपना लास्ट आईडी वाला टॉपिक, तो आप यहाँ देख सकते हो हमें लास्ट आईडी क्या रिटर्न आ रहा है, 10। सो इफ यू हैव एन इंसर्ट और अपडेट ऑन अ टेबल with an auto increment field, we can get the id of the last inserted updated record immediately. So in the table my students, the id column is an auto incremented field. So the following example are equal to the example from the previous example, except that we have added one single line of code to the id of the last inserted record. We also echo the last inserted ID। तो आप यहाँ देखेंगे रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ और लास्ट आईडी हमारी क्या बनी है, 10। तो उससे पहले हमारी आईडी थी 9,
रिफ्रेश करके देखते हैं 10 पर क्या डेटा रिटर्न आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैन पर जो स्टूडेंट का नेम डाला हुआ है वो हमें यहाँ से रिटर्न हो जाएगा इसमें। तो फाइल को ओपन करेंगे, लास्ट आईडी, और इस कोड को हमें डिस्प्ले करना है। तो अगेन यहाँ से कॉपी और यहाँ पर कॉल, लाइक दिस। इस कोड को कॉपी करेंगे, क्या किया, सब कुछ क्वेरी बिल्कुल सेम चल रही है, बस इस बार हमने यहाँ पे क्या लिखा, कनेक्शन जो हमने अपना वेरिएबल बनाया हुआ है उसको हमने निकाला है इंसर्ट अंडरस्कोर आईडी। अभी जो इंसर्ट अंडरस्कोर आईडी है ये आपका प्रीडिफाइंड रहेगा और डॉलर अंडरस्कोर लास्ट आईडी के अगेंस्ट हम लोग इसको यूज करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लास्ट आईडी को प्रिंट करा है, तो कनेक्शन से इंसर्ट आईडी फंक्शन आप रन करेंगे तो आपका लास्ट ऑब्जेक्ट का आईडी रिटर्न आएगा इस केस में। तो जैसे कि अभी आपको रिटर्न आएगा जब लोग पेज को रिलोड करेंगे 11, ठीक है, ये देखिए, क्योंकि 10 के बाद में नेक्स्ट एंट्री हमारी 11th की क्रिएट हुई है। अभी रिफ्रेश करें, देखो फिर से चेंज हो जाएंगे 12। रिफ्रेश करें, यहाँ पर जयंत की देखो जितनी बार हमने पेज को रिलोड किया उतनी एंट्री क्रिएट होती जा रही है इसमें। नेक्स्ट, अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो इंसर्ट मल्टीपल, इस फाइल को ओपन करेंगे वेब ब्राउजर में, so multiple SQL statements must be executed with the mysqli underscore multi underscore query function. So the following examples add 3 new records to the mystudent table, return are connected successfully and new records created successfully. पेज को यहाँ अगर रिलोड करेंगे तो आपको डेटा दिखाई देगा 12 के बाद 3 न्यू एंट्रीज, जैसे कि नीरज, सौरभ एंड तुषार। तो मल्टीपल लोगों की एंट्री कैसे जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे आपने लिखना है SQL और इंसर्ट इनटू माय स्टूडेंट, ठीक है, और इसमें हमने नेम डिफाइन किया। तो जैसे जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट कैसे होता है, प्लस इक्वल टू, PHP का हम लोग जानते हैं डॉट इक्वल टू। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप इस स्टेटमेंट को ओवर करेंगे तो उसके बाद में सेमीकोलन लगाना है, ठीक है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोड के अंदर भी आपको सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है, फिर डॉट इक्वल टू दूसरी आईडी, तीसरा रिकॉर्ड, इस तरह से आप मल्टीपल रिकॉर्ड यहाँ से स्टेप बाय स्टेप भेजते जाएंगे और आपको यहाँ से क्वेरी रन करनी है। जहाँ पर अभी तक हमारा चला था ओनली क्वेरी, इस बार आपको चलाना है मल्टी अंडरस्कोर क्वेरी, जिससे आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स बनके तैयार हो जाएंगे। तो इस फाइल का भी रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पर करेंगे अपडेट, रिलोड करके देखिए वेब ब्राउजर में, ठीक है। तो इसकी 3 एंट्री और बनी होगी नीरज, सौरभ, तुषार की, ये देखिए 16, 17, 18 सबका आईडी ऑटोमेटिकली रिनेम होते आ रहा है इस तरह से। तो मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए डॉट इक्वल टू, और ध्यान रखेंगे इन्वर्टेड कोड से शुरुआत करेंगे और इन्वर्टेड
कोड को जब आप एंड करेंगे तो उसके लास्ट में तो सेमीकोलन आएगा ही, लेकिन इन्वर्टेड कोड से पहले भी सेमीकोलन का इस्तेमाल करना ना भूलें। अब देखो, अगर हम लोग इस तरह से अगर डेटा को इंसर्ट कराते हैं तो ये सेफ तरीका नहीं है इंसर्ट कराने का। तो आपको प्रिपेयर का यूज़ करना चाहिए। प्रिपेयर के केस में क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं प्रिपेयर्ड, prepared statement are very useful against SQL injection. Prepared statement and bound parameter. So a prepared statement is a feature used to execute the same or similar SQL statements repeatedly with high efficiency. Prepared statements basically work like this. Prepare an SQL statement template is created and sent to the database. Certain values are left unspecified called parameters, labeled question mark, example insert into my guest, और वैल्यूज में आप वैल्यू डायरेक्ट ना लिखे, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क पास करेंगे। अब ये 3 क्वेश्चन मार्क लगाने कितने लगाने, तो जितने आपके कॉलम्स हैं, जितने कॉलम को आप डेटा दे रहे हो उतने क्वेश्चन मार्क आपने कॉल करने यहाँ पर। द डेटाबेस पार्सेस कंप्लाइज एंड परफॉर्म क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन on the SQL statement template and stores the result without executing it. So execute at a later time. The application binds the value to the parameter and the database executes the statement. This application may execute the statement as many times as it wants with different value. So compared to execute SQL statement directly, prepared statements have 3 main advantages. Prepared statement reducing parsing time as the preparation on the query is done only once, although the statement is executed multiple times. Bound parameters minimize bandwidth to the server as you need send only the parameters each time and not the whole query. Prepared statement are very useful against SQL injections because parameter values which are transmitted later using a different protocol need not be correctly escaped if the original statement template is not derived from external input. SQL injection cannot occur. So prepare statement in MySQL, तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं न्यू रिकॉर्ड सक्सेसफुली। सो इसको किस तरह से भेजा गया है डेटा को, उसको हम लोग जरा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कोड लाइन टू एक्सप्लेन फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ इंसर्ट इनटू माय स्टूडेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल्स, वैल्यू को हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट किया हुआ है। सो इन आवर एसक्यूएल वी इंसर्ट अ क्वेश्चन मार्क वेयर वी वांट टू सब्स्टिट्यूट in an integer string double or blob value, then have a look at the bind parameter। तो आपने यहाँ पर जैसे कि 3 डेटा अगर भेजें, तीनों डेटा के टाइप क्या है, अगर तीनों डेटा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल स्ट्रिंग है तो आपने लिखेंगे एस एस एस, एस बोले तो स्ट्रिंग, ठीक है। सो और उसके बाद में आप अपने फील्ड के वेरिएबल नेम पास कर देंगे। दिस फंक्शन binds the parameter to the SQL query and tell the database what the parameters are. The SSS argument lists the type of data that the parameters are. The S character tells MySQL that the parameter is a string. The argument may be one of 4 types, जैसे कि I से रिप्रेजेंट होता है इंटीजर, D से होता है डबल यानी कि फ्लोटिंग, S से होता है स्ट्रिंग एंड B से होता है ब्लॉक। सो वी मस्ट हैव वन ऑफ दीज फॉर ईच पैरामीटर। By telling MySQL what type of data to expect, we minimize the risk of SQL injection. If we want to insert any data from external source like user input, it is very important that the data is sanitized and validated. So अगर हम लोग डायरेक्ट डेटा इस तरह से ले रहे हैं जो हमने पहले प्रैक्टिस की है, डेटा तो जाता है बट वो सेफ तरीका नहीं है, ये सिक्योर तरीका है। इसमें अगर आपने बताया कि फर्स्ट नेम के अगेंस्ट स्ट्रिंग ही जाएगा तो स्ट्रिंग ही जा सकता है और कोई डेटा उसमें पास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो
चलिए इसको सही कर लेते हैं। ये हमारा प्रिपेयर्ड पार्ट। Example MySQL with prepared statements. ये अपना पूरा कोड आ गया इसका इस तरह से। अब आप यहाँ पर इसका पूरा विजुअल देखें कोड का। हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल में डायरेक्ट डेटा ना पास करके उसको हमने क्वेश्चन मार्क में पास किया। देन बाइंड पैरामीटर का यूज़ करके हमने इसको तीनों का टाइप बताया। ये तीनों का जो टाइप है वो है स्ट्रिंग और अपने वेरिएबल्स को पास करना है बस। अब आप यहाँ पर इस तरह से लिखते जाएंगे, फर्स्ट नेम सुमित, लास्ट नेम थापा, ईमेल इज दिस, और इसको एग्जीक्यूट। फिर आप दूसरा नेम क्या डालना चाहते हैं, एग्जीक्यूट। फिर आप थर्ड नेम क्या डालना चाहते हैं, एग्जीक्यूट। फिर फोर्थ नेम क्या डालना चाहते हैं। तो ये प्रोसेस तब तक चलाते जाइए जब तक आपका डेटा इंसर्टेशन कंप्लीट ना हो जाए इसमें। नेक्स्ट, ये मैटर हम ज़्यादा शुरुआत से शुरू इस तरह से इसको इस तरह से अरेंज कर लोगे। चलिए, तो बैकेंड में देख सकते हैं आप, यहाँ पर जब लोग रिलोड करेंगे तो हमारी एंट्रीज आ चुकी है इस तरह से। तो हमने दो नेम यहाँ फ्रंट एंड से भेजे थे, कौन कौन से, सॉरी, सुमित, कनिका एंड वंशिका। और ये देखिए सुमित, कनिका एंड वंशिका, तीनों का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। टू टाइम क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने 2 बार सबमिट किया है इसको रिफ्रेश करके, इसलिए आपको डबल दिखाई देगा। नेक्स्ट, इसके बाद आपको मिलता है सेलेक्ट डेटा, यानी कि बैकएंड से फ्रंट एंड में डेटा को किस तरह से हम लोग फैच कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ तक के डेटा को करेक्ट कर चुके हैं, तो मैं इस टेबल को ड्रॉप करके दोबारा से शुरू करूँगा। तो एग्जाम्पल टेबल कैसे बनेगा, तो ये देखिए आपका इस क्वेरी से टेबल क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। फिर हमारा डेटा किस तरह से इंसर्ट होगा, तो ये आपका डेटा इंसर्ट हो चुका है इस तरह से सक्सेसफुली। इंसर्ट मल्टीपल डेटा कैसे होगा, वो डेटा हमारा यहाँ पर आ चुका है इसमें। लास्ट आईडी कैसे गेट करना है वो पार्ट हमारा हो चुका है इसमें। और प्रिपेयर किस तरह से काम करेगा ये पार्ट भी हमारा हो चुका है। अब जब आप पेज को रिलोड करेंगे तो माई स्टूडेंट के अंदर आपका एप्लीकेशन जो था डेटा का वो खत्म हो गया। तो फर्स्ट एंट्री थी निशांत के नाम से, सेकंड नीरज सिंह, सौरभ, तुषार, जयंत, सुमित, कनिका, वंशिका, सबका डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। अब बैकएंड से ये डेटा जो है हमें फ्रंट एंड में फैच करना है, तो इसको बोलते हैं सेलेक्ट डेटा। तो आइए सेलेक्ट डेटा, तो सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ माई एसक्यूएल डेटाबेस। तो
आप यहाँ से यूज करेंगे सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम. द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल, और वी कैन यूज द स्टार कैरेक्टर टू सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल. अगर हमने इस तरह से लगाया तो जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और उसके अंदर जितना भी नंबर ऑफ डेटा है वो सारा का सारा एंटायर आप फैच कर पाएंगे. So select data with MySQLi. The following example: select the ID, first name and last name columns from the MyStudents table and displays it on the page. तो देखो फर्स्ट एंट्री थी निशांत और लास्ट एंट्री थी वंशिका. आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं निशांत एंड वंशिका, और ये डेटा हमारा कम्प्लीटली यहाँ पर फैच हो रहा है. फैच करने के लिए कोड क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर आते हैं, ये इसका कोड है और इसको आप लिख लेंगे एग्जाम्पल. तो हम इस लाइन को कॉपी करके लाएंगे यहाँ से. चलिए इस तरह से हम लोग डेटा ला सकते हैं. तो डेटा लाने के लिए क्या करना है, लिखेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा, ठीक है, फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, से सारा डेटा ले आएंगे. अगर आप लिखेंगे सेलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम जैसे कि आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम माय स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम लोगों ने वहाँ से बैकएंड से फैच किया हुआ है, तो आपको पर्टिकुलर डेटा भी मिल जाएगा. अगर डेटा रिटर्न होगा तो आपको दिखेगा, अगर नहीं है पीछे बैकएंड में कोई डेटा तो आपको यहाँ रिटर्न आएगा 0 रिजल्ट्स इस केस में. ठीक है. So first we can set up an SQL query that selects the ID, first name and last name columns from the MyStudent tables. The next line of code runs the query and put the resulting data into a variable called result, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है इस तरह से. ठीक है. नेक्स्ट, then the function num underscore rows check if there are more than 0 rows written. If there are more than 0 rows written, the function fetch associative puts all the results into an associative array that can loop through the while loop through the result set and outputs the data from the ID, first name and last name columns. नेक्स्ट, इसके बाद आता है वेयर. सो सेलेक्ट एंड फिल्टर डेटा फ्रॉम अ MySQL database. The where clause is used to filter records. The where clause is used to extract only those records that fulfill a specified condition. तो आप यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नेम वेयर column name or operator value. So select and filter data with MySQL. The following example selects the ID, first name and last name columns from the MyStudent table where the last name is Thapa and displays it on the page. तो हमने बैकएंड से फाइंड किया, अभी हमें सुमित थापा का डेटा देखना है, तो हमें सुमित थापा का डेटा रिटर्न हुआ. तो ये अपनी फाइल है और इस फाइल के अंदर हम इसको चलाना चाह रहे हैं.
इस कोड को अपडेट करेंगे। MySQL where, ये आ गया। 2-3 लाइनें कम कर लीजिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर डिफाइन किया है सेलेक्ट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम माय स्टूडेंट वेयर लास्ट नेम इज थापा। तो थापा जिस डेटा में अवेलेबल था वो डेटा पर्टिकुलर आपका यहाँ पर आ चुका है। So first, set up an SQL query that selects the ID, first name and last name columns from the MyStudent table. The next line of code runs the query and put the resulting data into a variable called result. Then the function number underscore rows check if there are more than 0 rows returned. If there are more than 0 rows returned, the function fetch associative puts all the results into an associative array that we can loop through the while loop through the result and set the output the data from the id first name and last name columns. नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर बाय। Select and order data from a MySQL database. The order by clause is used to sort the result set in ascending or descending order. The order by clause sorts the record in ascending order by default. To sort record in descending order, use the DESC keyword यानी कि descending. तो select column underscore name from table where column name ASC pipe DESC. तो यहाँ पर अब आप देखेंगे एंट्री जो हमारी रिवर्स हो गई, इसमें जयंत ऊपर चला गया है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखेंगे तो, और यहाँ पर वी हमें इधर दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं जे के बाद में के होता है, फिर एन होता है, फिर एस होता है, फिर टी होता है, फिर वी होता है। तो इस तरह से आप डेटा को अरेंज कर सकते हो। तो हमने डेटा को अरेंज करने के लिए ऑर्डर बाई में एक अपना क्वेरी यहाँ पर रन किया होगा, लास्ट नेम के अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर आएंगे ऑर्डर बाई में और इस फाइल का एंटायर मैटर कॉपी इस फाइल में करेंगे क्लोज और यहाँ का एंटायर डेटा लेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम माय स्टूडेंट्स एंड ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम जैसे क्या है जयंत, तो जयंत के सबसे डेटा हमारा अरेंज है, जबकि जो हमारी बिगिनिंग थी वो एन से थी, तो जे लिख दिया तो जयंत के नाम से हो गया हमारा इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑर्डर बाय में जाके बता सकते हो फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग करना है या लास्ट नेम के अकॉर्डिंग करना है। तो मैं जैसे लास्ट नेम यहाँ पे कर देता हूँ। और अब आप देखेंगे डेटा हमारा कनिका से शुरू हो रहा है। ठीक है, लेकिन बी जो है अल्फाबेटिकली ऊपर आ गया, बी के बाद के, फिर एम, फिर पी, फिर आर, फिर एस, फिर टी। तो इस तरह से चेंज किया जा सकता है। ठीक है, so first we set up an SQL query that selected the ID first name and last name columns from the MyStudent table. The next line of code runs the query and put the resulting data into a variable called result. Then the function number underscore rows check if there are more than 0 rows returned. If there are more than 0 rows returned, the function fetch associative put all the results into an associative array that we can loop through. The while loop loops through the result, sets the outputs the data from the ID first name and last name column. तो यहाँ पर हमने इसको उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ऊपर भी लिख देता हूँ लास्ट नेम।
इसके बाद आपका आता है डिलीट डेटा। So delete data from a MySQL table using MySQLi. The delete statement is used to delete records from a table to आपको यहाँ पे क्वेरी चलानी है delete from table name where column name equal to some value। इस तरह से आपको कुछ पास करना रहेगा। इस तरह से notice the where clause in the delete syntax. The where clause specifies which record or records that should be deleted. If you omit the where clause, all records will be deleted. तो इसका आपने खास ध्यान रखना है। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली में रिटर्न आ रहा है, यानी कि आईडी नंबर 3 को डिलीट किया गया। तो रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं 3 डिलीट हो चुका है, 1 2 4 5 6 7 8 ही अवेलेबल है एज ऑफ नाउ। तो इस कोड को भी हाईलाइट करेंगे हम कि किस तरह से डिलीट वर्क कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, तो हमें रिटर्न आ रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं क्वेरी क्या चलाई हुई है, हमने यहाँ पे लिखा है डिलीट फ्रॉम माई स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 3। तो जहाँ पर हमारी आईडी 3 थी वो रिकॉर्ड आपका डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। इसी तरह से अगर आपने कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है तो आप अपडेट के लिए भी देख सकते हैं, ये हमारा अपडेट है। तो यहाँ से हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी अगेन, कोड को कॉपी करेंगे यहाँ से, चलिए ऑलमोस्ट सब ठीक है। तो the update statement is used to update existing records in a table। और अपडेट के लिए आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपडेट टेबल का नेम, देन सेट करेंगे कॉलम की वैल्यू, दूसरे कॉलम की वैल्यू, वेयर जिस कॉलम को हमने चेंज करना है उसको आपने यहाँ पर डिफाइन कर लेना है। तो क्वेरी कुछ इस तरह से होती है कि भाई अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम 1 इक्वल टू वैल्यू कॉलम 2 की वैल्यू और मैनी मोर जो भी आपके पास कॉलम्स है, और इनकी जो बिगनिंग होती है बिल्कुल शुरू में रखी जाती है इस तरह से, इस तरह से। सो नोटिस द वेयर क्लॉज इन अपडेट सिंटैक्स, इसमें भी आपको वेयर का ध्यान रखना है। इफ़ यू फॉरगेट टू अपडेट योर वेयर तो ये क्या करेगा, एंटायर रिकॉर्ड जो भी आपके बैकएंड में होंगे सबको एक जैसा कर देगा। तो ध्यान रखिएगा डिलीट और अपडेट के टाइम पर वेयर को हमें नहीं भूलना है। So the where clause specifies which record or records that should be updated. If you omit the where clause, all records will be updated.
सो दी फॉलोइंग एग्जांपल्स अपडेटेड द रिकॉर्ड विद ID2 इन द माय स्टूडेंट्स. सो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, अपडेट माय स्टूडेंट्स एट लास्ट नेम कुमार वेयर ID इज 2. तो ID2 का जो लास्ट नेम वो क्या है, सिंह, लेकिन जैसे मैं रिलोड करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे इसमें कुमार ऐड हो चुका है. ठीक है, तो ये आपका लास्ट नेम अपडेट करने के लिए इस तरह से आप जा सकते हैं. नेक्स्ट आता है लिमिट डेटा. तो जैसे अभी जब लोग सेलेक्ट डेटा क्वेरी को चला रहे थे तो बैकएंड में जितना भी डेटा था सारा ही डेटा हमें मिल रहा था इसके अंदर 1 से लेके 8 तक. बट अगर आप डेटा को लिमिट में लाना चाहते हैं तो उसके लिए लिमिट डेटा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं. द लिमिट डेटा सिलेक्शन फ्रॉम अ MySQL database. MySQL provide a limit clause that is used to specify the number of records to return. The limit clause makes it easy to code multi-page results or pagination with SQL and is very useful on large tables. Returning a large number of records can impact on performance. For example, assume we wish to select all records from 1 to 30 inclusive from a table called order. The SQL query would then look like this. तो क्या होगा, आपको क्वेरी चलाना का सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम ऑर्डर्स लिमिट 30. तो 30 ही रिकॉर्ड चाहिए, मैं 300 है 3000 है, मैं सारे नहीं लेने. सो व्हेन द SQL query above is run, it will return the first 30 records. What if we want to select records from 16 to 25? इसको बोलते हैं offset. So MySQL also provide a way to handle this by using offset. The SQL query below says return only 10 records, start on record 16 and offset 15. तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट 10 offset 15 इस तरह से. और you could also use a shorter syntax to achieve the same result. आप यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से offset 15 और लिमिट 10. तो इस केस में शॉर्टर सिंटैक्स में लिमिट 15 जो है मतलब 15 ऑफसेट वाला पार्ट है और जो 10 हमने लिखा है कॉमा लगा के वो रिटर्निंग वाला पार्ट है. सो नोटिस दैट द नंबर रिजर्व व्हेन यू यूज अ कोमा. तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग लिमिट डेटा वाली फाइल में आते हैं और इसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे सेम. इसका कोड स्ट्रक्चर रहेगा. और अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है लिमिट एग्जांपल को. तो इस लाइन को मैंने कमेंट किया हुआ है. तो पहले हमने लिमिट लगाई 5. तो आप देख सकते हैं 1 2 3 को हम लोग डिलीट कर चुके हैं. तो 4 5 6 5 रिकॉर्ड्स जो है आपके बैकएंड से फैच हो रहे हैं. ठीक है, और अगर मैं इसका दूसरा कोड चला के देखना चाहूँ इस तरह से, इसको कमेंट कर देंगे तब भी आपको सेम रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा इसमें. ठीक है, तो इस बार हमने क्या करा है, यहाँ पर लिखा है लिमिट 5 ऑफसेट 2. तो 5 को ऑफसेट करके लास्ट के रिमेनिंग जो 2 रिजल्ट है वो आपको इस केस में डिस्प्ले हो जाएंगे इस तरह से. तो ये था आपका लिमिट डेटा. तो डेटाबेस वाला पार्ट जो है आपका वो कंप्लीट है. अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा एजेक्स वाला पार्ट, कि एजेक्स किस तरह से काम करता है. और फिर हम अब प्रोजेक्ट के उस टॉपिक पर आ जाएंगे. अब आप ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन लिख के देखें किस तरह से प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट होगा और एक एक लाइन का मतलब आपको समझ में आना स्टार्ट होगा. प्रॉपर्टीज़ का पार्ट अपना कंप्लीटेड है. गो थ्रू कीजिएगा फाइल्स को. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.